Good morning, students. Welcome to the next and last unit of your syllabus. It is semiconductor devices. First of all, what is electronic device? Any device whose action is based on controlled flow of electrons through it is called electronic device. We know electron is very light particle. Its mass is very small, and electric and magnetic field can exert force on the electron. So it can be accelerated by applying electric field or magnetic field. Force exerted on charged particle by electric field is given by this. So motion of electron can be controlled or manipulated by applying electric field. Any device which is based on controlled motion of electron through it is called electronic device. Electronic devices are of two types: vacuum tubes and solid state electronic devices. Vacuum tubes are rarely used, so I am not going to teach you about these. Solid state electronic devices. These are extensively used, be it your mobile phone, be it your smart TV, laptop, etc. All use solid state electronic devices. Some of the examples which we will take up later on are junction diodes, transistor, and integrated circuits. Solids can be classified into three groups uh, depending on their electrical behavior. First group is metal. They have high electrical conductivity. Semiconductor, their electrical conductivity is less than metals. And insulator, they have very low electrical conductivity. The values of electrical conductivities for metal, semiconductor, and insulator are given here. For metal, it is 10 to power 2 to 10 to power 8 Siemens meter minus 1. For semiconductor, 10 to power minus 5 to 10 to power 0 Siemens meter minus 1. And for insulator, it is 10 to power minus 8 Siemens meter minus 1, very small electrical conductivity. The electrical conductivity of semiconductor lies between electrical conductivities of metals and insulators. Semiconductor have much higher resistivity than metals. इनकी resistivity metal से अधिक है, and they have negative temperature coefficient of resistance. In case of metal, we know temperature अगर increase करता है तो resistance भी increase करती है, और इनका temperature coefficient of resistance या resistivity is positive. But in semiconductor, ये हम पहले पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी will decrease. So temperature coefficient of resistance इनके लिए negative. We know R is rho L upon A. So if R decreases, rho will also decrease because R is directly proportional to rho. Then number density of charge carriers is less than metals. मेटल में नंबर चार्ज डेंसिटी इसके आसपास होती है, बट हेयर इट इज़ 10⁻⁶ पर मीटर क्यूब. सीधा सा मतलब, इफ़ यू टेक अ यूनिट क्यूब ऑफ कॉपर, टेक अ ब्लॉक ऑफ कॉपर जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, तो उसका वॉल्यूम 1 meter into 1 meter into 1 meter, this is 1 meter cube, we call it unit cube. इस यूनिट वॉल्यूम में 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे लगभग. बट इन सेमीकंडक्टर्स, अगर सेमीकंडक्टर का आप इतना वॉल्यूम लें यूनिट क्यूब, तो उसमें 10 लाख
मोबाइल चार्ज कैरियर्स होंगे। तो नंबर डेंसिटी बहुत कम होती है सेमीकंडक्टर में एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, we can classify semiconductors into two groups. Intrinsic semiconductors. A pure semiconductor is called intrinsic semiconductor, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर यूनिट क्यूब और होल्स दे आर इक्वल. This is number density of electrons, free electrons, and this is number density of holes. By number density I mean number of free electrons per unit volume. ये Ne, this is Ne for metals, this is Ne for semiconductors. We call it number density or number of free electrons per unit volume. सो नंबर डेंसिटी दोनों की बराबर होती है होल्स की. होल क्या होता है हम अभी पढ़ेंगे. नंबर 2 इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इट इज़ प्योर सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूँ मैं. एक्सट्रिंसिक ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं in order to increase electrical conductivity. This deliberate addition of suitable impurity into pure semiconductor is called doping. और जिसमें हम इम्प्योरिटी डालते हैं उसको डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं. अ डोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जिसमें जो प्योर नहीं हो, जिसमें हमने इम्प्योरिटी डाली हुई हो, उसको हम डोप्ड सेमीकंडक्टर कहेंगे. इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स वो बराबर नहीं होती. नाउ बैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. Silicon and germanium are most widely used semiconductors. They have 4 electrons in their outermost orbit. Silicon का atomic number it is 14. 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, 8 दूसरे में, 4 लास्ट या बैलेंस शेल में. जर्मेनियम अटोमिक नंबर 32. पहले में 2, 8, 18, ये हमारे हो गए 28 + 4 32. तो दोनों के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाउ वी नो ओनली इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. तो सिलिकॉन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स. ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाएंगे. सो ये हमारा सिलिकॉन एटम, इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस शेल में. These 4 electrons will form 4 covalent bonds with neighboring silicon atoms. हर सिलिकॉन का एटम 4 बॉन्ड बनाएगा अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम्स के साथ. ये दिस इज सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन. सो टेक एनी सिलिकॉन एटम. इसकी बात करें हम, इसका ये इलेक्ट्रॉन ये ऊपर वाले का क्रॉस वाला इसने कंट्रीब्यूट किया. ये इस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. दीज आर 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस सिलिकॉन एटम्स. दीज 4 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर 4 सिलिकॉन एटम्स. सो ऑक्टेट रूल के हिसाब से दिस विल बिकम स्टेबल. तो each silicon atom is tetrahedrally bonded to 4 neighboring silicon atoms, and at low temperature all covalent bonds are intact and there are no free electrons. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन. कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं है. It is difficult to liberate electron from the covalent bond without energy. But when temperature is increased, रूम टेम्परेचर के आसपास जब पहुंच जाता है, इट इज़ एट वेरी लो टेम्परेचर. ये लो टेम्परेचर पे सारी कोवलेंट बॉन्ड जो है इंटैक्ट होगी. कोई भी कोवलेंट बॉन्ड टूटी नहीं होगी. सो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा. लेकिन रूम टेम्परेचर पे या टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं, द
kinetic energy of these electrons which are involved in bond formation will increase. और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इनकी एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि दे विल ब्रेक अवे फ्रॉम द कोवलेंट बॉन्ड. सो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. ई सिलिकॉन एटम इज़ बॉन्डेड थ्रू 4 कोवलेंट बॉन्ड्स. तो ये इस सिलिकॉन एटम का डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम का है, क्रॉस वाले इसके जो नेबरहुड में सिलिकॉन एटम है उनके हैं. तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच कोवलेंट बॉन्ड. तो एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द बॉन्ड विल बी ब्रोकन एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी लिबरेटेड. तो इस कोवलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे बाहर निकल गया. जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई इलेक्ट्रॉन के लिए. दिस वैकेंसी इज़ कॉल्ड होल. तो जब एक बॉन्ड टूटेगी तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और एक होल प्रोड्यूस होगा. सो देयरफॉर इफ 100 कोवलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन तो 100 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएंगे और 100 ही होल्स पैदा होंगे. So in pure semiconductor we can say from here that N is equal to NH. But remember it will happen at room temperature. At low temperature there will be no free electrons. अगर free electrons नहीं है it will behave like an insulator. At low temperature इसकी conductivity जो है 0 होगी. It will be insulator because कोई free electron नहीं होगा. If there is no free electron, no electrical conduction is possible. Now, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स टूटेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की संख्या बढ़ जाएगी. तो जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. So with increase in temperature what will happen? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब रेजिस्टिविटी घटेगी बिकॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज 1/ρ. सो टी इंक्रीजेस तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ते जाएंगे और जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी. सो वी सी टी इंक्रीजेस, इसको बीच वाले को छोड़ दें हम, देन रो डिक्रीजेस. सो वी से दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज लेस देन 0 और नेगेटिव. नाउ लेट अस सी कि हाउ सेमीकंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूँ, से इट इज़ ए बार ऑफ सेमीकंडक्टर, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री, इट इज़ फ्री टू मूव. अगर यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा बिकॉज दे आर इन बॉन्ड, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी. व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो इनके चलने से करंट फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट. रिमेंबर ओनली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. So due to motion of these electrons, what will happen? Current will flow. Now this is vacancy for electron and it has strong tendency to gain electron. तो electron from neighboring covalent bond, जैसे ये covalent bond है, इस covalent bond से इलेक्ट्रॉन में जंप, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर. So electron may jump from 2 number covalent bond to 1 number covalent bond.
तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन 2 नंबर से 1 नंबर में आएगा, यहाँ पे होल ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ये भर गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड होल इज़ क्रिएटेड एट 2 नंबर पोजीशन। सो ये इलेक्ट्रॉन जो 2 से 1 में आया, जब ये इलेक्ट्रॉन 2 नंबर कोवेलेंट बॉन्ड से 1 नंबर में आएगा, इसके चलने से भी करंट फ्लो होगा, एंड दिस करंट इज कॉल्ड होल करंट। वाई इट इज कॉल्ड होल करंट? बिकॉज 2 नंबर पोजीशन से इलेक्ट्रॉन 1 नंबर पोजीशन पे तब आया बिकॉज यहाँ पे होल था। हैड देयर बी नो होल एट पोजीशन 1, ये इलेक्ट्रॉन 2 नंबर से 1 नंबर में नहीं आता। सो this electron jumps from position 2 to 1 because of presence of hole. So we call this hole current, not electronic current, although it is because of motion of electrons. तो electrons I told you they will drift towards this positive plate. अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहे हैं तो करंट इनके फ्लो होने के कारण इस तरफ होगा. सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट. एज यू नो, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन 2 से इधर आया, इसके कारण करंट फ्लो करेगा. इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, तो इसके कारण जो करंट होगा दैट इज ऑल्सो टूवर्ड्स दिस, और हम कहेंगे इसको होल करंट. सो बोथ करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन. देन इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम साइट नंबर 3 या बॉन्ड, इस बॉन्ड से टू नंबर. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन 3 से 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर पे होल ख़त्म हो जाएगा एंड इट इज़ क्रिएटेड एट 3. फिर फ्रॉम पोजीशन 4, साइड नंबर 4 से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये करंट भी होल करंट ही कहलाएगा जो 4 से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, एंड दिस करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और इस होल को ख़त्म कर देगा. सो वी कैन से कि ये जो होल है ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल. नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन मूव करता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो. सो होल बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज. That's why it is moving towards negative plate. See, if sodium loses electron, it carries positive charge. सोडियम में there are 11 इलेक्ट्रॉन और इसमें 11 ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, 2, 8, 1. तो टोटल चार्ज या नेट चार्ज ऑन सोडियम एटम 11 ई न्यूक्लियस पे एंड -11 एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे. सो टोटल चार्ज इज 0. बट इफ़ इट लूजेज व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर न्यूक्लियस में चार्ज उतना ही रहेगा, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 हो गया तो 10 ई. सो इट विल कैरी पॉजिटिव ई चार्ज एंड वी डिनोटेड बाय सोडियम पॉजिटिव, कि इसके पास एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज एक्स्ट्रा है. तो सिमिलरली इफ़ इट इज़ अ सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन एटम में देयर आर 2, 8, 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 14 ही हमारे ये हैं. तो नेट चार्ज इज 0. इफ़ इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन देन इट विल बिकम सिलिकॉन पॉजिटिव. इट विल बिकम सिलिकॉन पॉजिटिव. तो सी हियर, व्हेन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो दिस इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय दिस सिलिकॉन एटम, सो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. So this hole is a seat of positive charge. Hole is a seat of positive charge. And how hole is created? When electron breaks away from the covalent bond, it leaves behind a vacancy for electron, and that vacancy for electron is called hole. And hole behaves like a positive charge. So in semiconductor, current flows due to motion of electrons and motion of holes, unlike metals where current is carried only by free electrons. इसमें करंट जो है इलेक्ट्रॉन के कारण भी फ्लो करेगा और होल्स के कारण भी फ्लो करेगा. दोनों ही करंट की डायरेक्शन एक सेम डायरेक्शन में होगी. सो वी कैन से कि टोटल करंट फ्लोइंग इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच.
So this is how semiconductor conducts electric current. If temperature is raised, more number of bonds will be broken, more holes and electrons will be produced, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल होंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. Now, some important point about intrinsic semiconductor. They have low electrical conductivity, Ne, number of electrons per unit volume 10 raised power 6 per meter cube. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. नाउ देन कम्स डोपिंग. वी नो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती. देयर आर 10 raised power 6 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. जबकि सेमी कंडक्टर में मैंने कंडक्टर्स में या मेटल्स में आई टोल्ड इट इज़ अबाउट 10 power 23. सो दे आर नॉट ऑफ ग्रेट यूज एज सच बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर, तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, we deliberately add suitable impurity into pure semiconductor. So why impurities are added? To increase electrical conductivity of pure semiconductor. This process of deliberate addition of suitable impurity to the pure semiconductor is called doping. और जो इम्प्योरिटी एटम हम ऐड कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड डोपेंट. और डोप्ड सेमीकंडक्टर जिसमें हमने इम्प्योरिटी डाली हो दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो व्हाट इज़ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? और डोप्ड सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी डाल रखी हो, एंड इंट्रिंसिक विच इज़ प्योर. Now, some of the requirement for doping. The semiconductor material should be pure. जिसमें हमने impurity डालनी है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, 99.99% तक प्योर होना चाहिए. डोपेंट जो impurity atom है should neatly replace semiconductor atoms. एंड द साइज ऑफ द डोपेंट जो इम्प्योरिटी एटम डालना है हमने उसका साइज लगभग सिलिकॉन के एटम्स के बराबर होना चाहिए. अगर साइज लगभग बराबर होगा तो यहाँ से वो सिलिकॉन को हटा देगा इम्प्योरिटी एटम और इसकी जगह पे खुद आ जाएगा. और जब उसका साइज लगभग बराबर होगा तो दिस क्रिस्टल लैटिस विल नॉट बी डिस्टॉर्टेड. सो नंबर 1 कंडीशन इज के सेमीकंडक्टर प्योर स्टेट में होना चाहिए. ये जो हम इम्प्योरिटी एटम डालेंगे वो क्या करेंगे, ये जो सिलिकॉन एटम है हेयर एंड देयर कुछ सिलिकॉन एटम को हटा के उनकी जगह खुद आ जाएंगे. तो जब वो आएंगे तो ये यहाँ पे इम्प्योरिटी एटम बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो जाना चाहिए, एंड दैट इज़ पॉसिबल अगर उसका साइज़ जो है लगभग सिलिकॉन के एटम के बराबर हो. So it should not, addition of impurity should not distort crystal lattice, and it is possible if size of impurity atom is almost equal to size of silicon atom. So dopant should not distort crystal lattice और साइज लगभग बराबर होना चाहिए. तब क्या होगा कि they will nearly replace semiconductor atoms. एंड कंसनट्रेशन ऑफ डोपेंट शुड बी स्मॉल. लगभग 1 part 1 million सिलिकॉन के एटम में डालेंगे हम, तो 1 part per million ऑफ सिलिकॉन एटम्स. अगर हमारे सेमीकंडक्टर में 1 million सिलिकॉन एटम्स हैं तो उसमें हम 1 इम्प्योरिटी एटम डालेंगे. सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.